Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Now, today is going to be another amazing post-market analysis video, and we'll discuss what can happen in Monday's trading session. Now, the next week, the upcoming weekly expiry is going to be a truncated week because Wednesday is a holiday over there. तो वेंसडे को जो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहती है वो आप ट्यूसडे को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूसडे के बाद सीधे एक्सपायरी का दिन आ जाएगा। हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होने के चांसेस हैं अपकमिंग वीकली एक्सपायरी में और इनफैक्ट अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज ऑन मंडे। बहुत सी जगहों पे कंट्री के अंदर लॉकडाउन्स लग रहे हैं, स्मॉलर लॉकडाउन्स, कई जगहों पे नाइट कर्फ्यू हो रहे हैं। ये हो गई कुछ लोकल या नेशनल नेगेटिविटी की बात। US markets all time high पे close हुए हैं, that is a global positivity. So basically what we are dealing with here is basically it's a global positivity versus the local or the national concerns or the national negativity. अब इसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर क्या हो सकता है, उन चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को हम हर एनालिसिस वीडियो की तरह तीन मेजर सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट द ग्लोबल एंड द लोकल अपडेट्स दैट कैन अफेक्ट द मार्केट्स इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। द सेकंड सेक्शन वुड बी अबाउट द एनालिसिस ऑफ द लास्ट ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि एनालिसिस करने से हमको हेल्प मिलती है अपने ट्रेडर माइंडसेट को बेटर बनाने में, ये समझने में कि जो हुआ मार्केट के अंदर वो क्या हुआ, क्यों हुआ और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे। एंड द थर्ड एंड द लास्ट सेक्शन वुड बी व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट्स इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन as well as in the upcoming weekly expiry. So we'll discuss all of that in this video. Stay tuned till the end of the video because every video is going to be very crucial for you, my friend. The more we learn, the more we earn, as I keep saying that. This is Pratksh Bhargav. We are watching Roaring Bulls, the stock market show. So let's move further ahead in the video. We will discuss quickly about what is happening around the market. Let me quickly turn on the screen recording for you. Okay, yes. So we'll discuss a simple details first about how the index behaved in the last trading session. If we look at the index, there were approximately there were exactly 23 advances and 27 declines. So it was a weak advance to decline ratio in the index. This shows some bearishness in the market. This shows कि bulls में इतनी strength नहीं है. Although India VIX is down, India VIX is below 20, yet the bearishness is there. Now reasons can be multiple. We'll discuss in this whole video in details. Okay. So this was the advance to decline ratio. We will look at the FII data as well. If we look at the FII DI data, we can see that the FIIs were the net sellers in the market on 9th of April. FIIs sold for 653.51 crores in the market on the date of 9th of April. And if we look at the DII data, we can see that DII were also the net sellers in the market. So this is this something that should that should cause a worry to us? Yes, it might be, because the FII and the DII both have turned net sellers after a few trading sessions, and that can spark a bit of concern in the market. And we can, for some more days, in terms of Nifty, we can see at least some consolidation in Nifty. If I'll say that Nifty में कोई डाउन ट्रेंड नहीं चालू हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि निफ्टी 12,000 चला जाएगा, but I'm expecting Nifty to trade between like 14,500 and maybe 15,000 or 14,950. यहाँ कहीं consolidation Nifty के अंदर हो सकता है. That's what I'm suggesting here, क्योंकि FII DI डेटा तो एक बात अपनी जगह हो गई, उसके अलावा बैंक्स में भी बहुत ज्यादा बेयरिशनेस है इस समय. We'll talk all about it right now. And other than FII DI data, if we look at the sectors here, which were the sectors that gained the most? So Nifty Pharma was the sector that gained the most. Nifty PSU banks also did well. Now the private banks were not able to do well. HDFC, if you will see closely, it has been underperforming for a long time now. तकरीबन एक महीना हो गया मार्केट में HDFC की नेट बैंकिंग से रिलेटेड जो नेगेटिव न्यूज अवेलेबल है, दैट इज स्टिल फ्लोटिंग आउट. एंड HDFC हैज बीन बैंड फ्रॉम इश्यूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स टू इट्स कस्टमर्स, जिस कारण से भी इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस, अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द HDFC बैंक. नाउ there's something some event also in the HDFC Bank in the upcoming weeks, in the next, I think in the next 2 weeks, there's a result being declared by the HDFC Bank. So we have to wait and watch what kind of impact does this event have on the markets for the HDFC Bank stocks. Okay.
Other than that, Nifty Media was up, Nifty IT was up. Again, Nifty IT is about to, TCS, Infosys, Mindtree, Wipro, all these companies are about to declare results in the upcoming week. So we have to wait and watch. Nifty IT can, set fire in the market. So that is something that can take the markets up in the upcoming week. If we'll talk about the losers, let's talk about the losers. So the top losers were from Nifty Energy and Nifty Bank. Now, this is mainly because of the HDFC Bank. As we can see, if HDFC moves even a little bit, even that impacts the whole Nifty and the Bank Nifty index in a huge ways. So that is one thing that we have to see. Nifty Private Bank, as we have just talked, it's not doing very well. So this is what we can see were the losers for the index. Now what we'll do is we'll quickly talk about the post-market bites, but the important news and the analysis that is affecting the markets. Okay, so Nifty opened the day at 14,884 and fell to 14,800. So 84 पॉइंट्स का जो फॉल था वो पहले 10 मिनट के अंदर ही मार्केट के अंदर आ गया था, बट उसके बाद मोस्टली निफ्टी पूरे समय कंसोलिडेट करता रहा. थोड़ा सा वापस ऊपर जाने के बाद निफ्टी एंडेड अप down by just 38 points or 0.26% loss. So it was a negligible downfall, but अगर overall देखा जाए तो it consolidated in a very tight range, and as an option buyer we did not have much of choice to trade between that particular range. So that was one thing to see. We'll talk all about how the trading went for the last trading session as an option buyer as well. So बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो SBI के कारण थोड़ा सा बुलिशनेस जो स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला वो भी पूरा सबसाइड हो गया. बैंक निफ्टी वाज वेरी बेयरिश फॉर द डे एंड इट कुड नॉट रीच द 33,000 लेवल. मैं आपको पिछले कई दिनों से बोल रहा हूं 33,000 का जो लेवल है दैट इज वेरी क्रूशियल लेवल फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स, एंड वी हैव टू वॉच इट. वी हैव टू गिव बैंक निफ्टी इंडेक्स एटलीस्ट वन डे टू सस्टेन above the 33,000 levels. Then we can say that yes, bank nifty is now ready to move back up towards the 34,000, the 35,000 levels. So that we have to watch. Okay, the government asked the major pharma companies to boost the production of remdesivir. That is a drug that is helping the COVID patients. कोविड पेशेंट्स को इस ड्रग से कुछ हेल्प मिल रही है, कुछ रिलीफ मिल रहा है. दैट इज व्हाट वी नो सो फार अबाउट दिस ड्रग, एंड इसको और ज्यादा बढ़ाने का, फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन चालू करने का गवर्नमेंट ने जो है नोटिस जारी किया है फार्मा कंपनीज के लिए, जिस वजह से सिप्ला, कडिला हेल्थ केयर, सन फार्मा, डॉक्टर रेडीज, इन सभी के जो फार्मा स्टॉक्स हैं, जो ये सारे फार्मा स्टॉक्स हैं, इनके शेयर्स में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली, जिस कारण से द निफ्टी फार्मा सेक्टर वेंट अप एंड समहाउ हेल्प्ड निफ्टी टू स्टे इन अ रेंज. अदरवाइज निफ्टी कुड हैव बीन मोर वीक. ठीक है, स्मॉलर स्टॉक्स डिड वेरी वेल इन द मार्केट्स वेयर निफ्टी ओवरऑल इट क्लोज्ड इन रेड फॉर द लास्ट वीक, बट इफ यू विल सी निफ्टी मिड कैप and small cap have closed 1 to 3% up. So the thing to notice here is the nifty mid cap, the small cap sector has been, nifty PSU bank, it all has been doing really well. So we cannot say that the index is going to go all bearish now, yahan se girna hi lagega, because the small cap and the mid cap is working just fine. It's the large cap market that is not supporting the nifty 50 index. So once this market starts to support the nifty 50 index, we can soon see 15,000 being taken out, but that soon might not come in April, because 15,000 पे अगर आप अभी जाके देखेंगे, there is a huge open interest build up on the call side on 15,000 levels for the market. That means that 15,000 can act as a crucial and a huge resistance for the upcoming weekly expiry as well as the next weekly expiry for the nifty 50 index. Okay, so now bank nifty, especially the private banks, they continue to look weak and the index is being pulled down. We have already been discussing the HDFC bank issue. हम पिछले कई हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं कि एक जनरल पॉजिटिविटी जो मार्केट के अंदर है, एक जनरल जो नेगेटिविटी मार्केट के अंदर है, सॉरी दिस इज नॉट पॉजिटिविटी, एक जनरल जो नेगेटिविटी मार्केट के अंदर है, दैट इज एडिंग द फ्यूल टू द फायर फॉर द HDFC बैंक, जिस कारण से HDFC बैंक में और गिरावट आती जा रही है, एंड हेंस टू द बैंक निफ्टी index. Now, till the time our banking index does not get strong and move above 33,000 levels, I do not have much expectation from Nifty as well. So there's something to watch about. You have to keep a watch at bank Nifty index. If it sustains above 33,000 levels, then we can say that Nifty is now ready to move back up to 15,000 levels. US markets की बात करें, US markets have closed again at all-time high
a positive global update. This is a positive global update. And coronavirus resurgence in India is a very big negative national update. So basically what we are dealing with here is, मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, we are dealing with the positive global updates versus the negative national updates. So that we have to see now. Maharashtra can be put under complete lockdown for up to 15 days. That is being discussed about. Other than that, 6 to 7 cities of Madhya Pradesh have also been under the lockdown for the next 15 days. This is a general negativity in the market. TCS and Infosys, along with Wipro, Mindtree, and few other IT companies will declare their results in the upcoming weeks. So you can watch for the IT stocks for the upcoming weekly expiries. And Nifty Metals is also looking really strong with Nifty Pharma and Nifty IT. So if you are looking to have some stock specific action, अगर stock specific action आप देखना चाह रहे हैं, this might be a good time to look into the Nifty IT, Nifty Pharma, and Nifty Metals sectors because these look pretty strong as of now. अब हम बात कर लेते हैं क्विकली हमारे लास्ट ट्रेडिंग सेशन की. हमने टोटल 3 ट्रेड्स लिए. नाउ मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि आई एम अ वेरी फ्रैंक ट्रेडर. आई वांट यू टू फेस द रियलिटी, एंड द रियलिटी इज दैट ट्रेडिंग बिजनेस comes with a cost of stop loss, and I am happy to give my stop loss wherever necessary. जरूरी यह है कि हम 10 में से 6 बार, 10 में से 7 बार प्रॉफिट लें और 10 में से 3 बार, 10 में से 4 बार स्टॉप लॉस दें. प्रॉफिट्स बड़े होने चाहिए, लॉसेस कट होने चाहिए, मिनिमाइज होने चाहिए. दैट इज हाउ यू विन एज एन ऑप्शन बायर इन इंट्राडे ट्रेडिंग. देखिए, ऑप्शन सेलर के लिए कहानी अलग हो जाती है. अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं और आप 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की कैपिटल से ऑप्शन राइट कर रहे हैं, ऑप्शन सेल कर रहे हैं, देन इट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी बिकॉज देयर यू कैन क्रिएट शॉर्ट स्ट्रेडल्स एंड क्रिएट शॉर्ट पोजीशंस विद हेज्ड पोजीशंस, जहां पे आप टाइम डिके का फायदा उठा के एक ऑप्शन सेलर के तौर पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं. बाय द वे, टाइम डिके के ऊपर अगर आपने अभी तक मास्टर क्लास नहीं अटेंड करी हो, सो दैट मास्टर क्लास इज कंप्लीटली free for you. Sorry, it's not free, it's available for the Red Circle members. That's an exclusive master class. You can go ahead and become a part of Red Circle member and attend that master class. फ्री मास्टर क्लास भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप जाके YouTube पे चेक कर सकते हैं. रोलिंग बुल्स के अंदर आपको काफी सारी फ्री मास्टर क्लास भी मिल जाएंगी. बट द मास्टर क्लास ऑफ टाइम डिके इज अवेलेबल फॉर ऑल द रेड सर्कल मेंबर्स एक्सक्लूसिवली. इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ रेड सर्कल, द मेंबरशिप लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. इट्स जस्ट फॉर 999 rupees per month, my friend, and it is a very great place to learn something great as an intraday trader. Okay, so we took 3 trades. In one trade we did get some profits, but in the next 2 we did hit a stop loss, so our net day ended in negative. अगर किसी ने एक लॉट के साथ ट्रेड किया होता तो द नेट डे वुड हैव बीन एंडेड विद -375 rupees ऑफ लॉस, एंड दैट इज वेरी मच फाइन बिकॉज द मंथ ऑफ अप्रैल दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी हैड टोटल लॉस इन वन ट्रेडिंग सेशन. दैट वाज आल्सो मिनिमाइज्ड टू जस्ट 375 rupees पर लॉट, सो दैट इज वेरी मच ओके बिकॉज हमने हाईली प्रॉफिटेबल डेज भी देखे हैं. एक दिन के अंदर 5,000-6,000 रुपए तक भी हमने बनाए हैं अप्रैल के मंथ में विद सिंगल लॉट साइज. सो इट्स totally fine to reduce the losses and maximize the profits. Now we'll jump onto the charts and look at the charts. How are they behaving? Okay, we look at India VIX quickly. India VIX is down, it's below 20 again, and it's a good sign for the bulls to be back in action. But the problem is there's a lot of global negativity available in the market. What we'll do is we'll look at the option chain data for the Nifty 50 index. Option chain data को अगर आप जाके देखेंगे एक बार तो आपको ये दिखेगा कि 14,800 के लेवल पे एक डिसेंट सपोर्ट अवेलेबल है. बहुत बड़ा सपोर्ट तो नहीं है, बहुत बड़ा सपोर्ट आपको जाके मिलेगा 14,500 के लेवल पे, एज यू कैन सी इट हियर. सॉरी, एंड 15,000 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अवेलेबल है. तो हम ये सेफली कह सकते हैं ऑप्शन चेन को देखते हुए कि 14,500 से लेकर 14,950 की एक ट्रेडिंग रेंज हमें कल के सेशन में प्लस हो सकता है. पूरे अगले वीक में हमें ये रेंज जो है देखने को मिले निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर. वील क्विकली जंप ऑन टू द निफ्टी 50 चार्ट एंड वील सी कि क्या हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में. एज यू कैन सी, पहले 5 मिनट के अंदर ही बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, एंड देन इट टुक सपोर्ट फ्रॉम आवर पाइवट लेवल्स. पाइवट पॉइंट के ऊपर फ्री मास्टर क्लास अवेलेबल है, जाके देख लीजिए. वर्कड ब्यूटीफुली, यहां से सपोर्ट लिया और पूरी तरह ऊपर जाके अगेन सीपीआर, दिस इज आवर सीपीआर जोन. सीपीआर से रिजेक्शन फेस किया. सीपीआर से रिजेक्शन फेस करने के बाद इट टर्न्ड आउट टू बी अ रेंज बाउंड मूवमेंट. ठीक है, बहुत समय तक रेंज बाउंड मूवमेंट था. तकरीबन 1:30 बजे के बाद एक हल्का सा ब्रेकडाउन मिला और वो भी अगेन पाइवट से रिवर्स होके कहीं वहीं जाके क्लोज हुआ जहां से तकरीबन मार्केट ओपन हुआ था. इट वाज डाउन बाय जस्ट 30-35 पॉइंट्स. सो कोई ऐसा मेजर मूव नहीं आया मार्केट के अंदर. इट स्टेड इन अ रेंज
all day long. So nothing to trade in the day as an option buyer. मैं कहूंगा आपको कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं थी. अगर हम यहां देखें तो यहां एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखती. अगर ये ब्रेकआउट कर जाता तो यहीं कहीं हमारा पहला ट्रेड फेल भी हुआ था, जहां पे हमने ब्रेकआउट सिनेरियो ढूंढने की कोशिश करी बट हुआ नहीं. हमने अपना ट्रेड लिया था जब सीपीआर का सेंटर पॉइंट ब्रेक हुआ था विद अ बुलिश कैंडल, तो हमने यहां पे ट्रेड सेटअप किया था बट इट वेंट अप, इट डिड नॉट रीच आवर टारगेट. हमारा टारगेट बस यहीं तक था एंड इट स्टार्टेड फॉलिंग. तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर लिया हमने. इस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस सेट था, हमने स्टॉप लॉस दिया एंड वी वर हैप्पी विद इट. ठीक है, सो दिस वाज वन रीजन ऑफ हिटिंग अ स्टॉप लॉस इन वन ट्रेड. एंड देन सेकेंडली इट अगेन ट्राइड टू गो अप यूजिंग द सपोर्ट. ये सपोर्ट जो अवेलेबल था यहां से ऊपर जाने की कोशिश करी निफ्टी 50 इंडेक्स ने, बट देन अगेन इट डिड नॉट, it was not able to move up and it again faced rejection from the CPR zone. CPR पे free master class available है, जाके देख लीजिए. It again fell down, it again took support from the pivot levels and went up and consolidated again. So nothing to trade for the day. As an option buyer कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी ज्यादा ट्रेड करने की, फिर भी हमने ट्रेड सेटअप्स करने की जो कोशिश करी उसमें अगर हमारा स्टॉप लॉस आया, so it was simple. First trade we hit profits, second trade we hit stop loss, third trade we hit stop loss, and as per the 2 stop loss rule we stopped trading for the day. क्योंकि 2 stop loss hit होने के बाद it's my personal rule that I stop trading. I don't want to trade in fear, anger or greed. I do not want to fight the market, so it's better to stop. Okay, that's how you win as an intraday trader. So that is pretty important. Now we will look on to the charts for what is the possibility for the upcoming trading session. If you can see, I can sense that the support will come around at support 1 would be at 14,764 levels. This is support 1, and resistance will come around at, I think resistance will come around at 14,925 levels. This is resistance 2 and resistance 1 will come around at 14,878. तो ये आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए. इनको मार्क आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत से इंडेक्स के अंदर बहुत सारी बुलिशनेस भी है कई सेक्टर्स में, बट बैंकिंग सेक्टर लुक्स रियली वीक. तो ये आपके अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन के लेवल्स हो गए निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए. बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर लें तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर सिचुएशन में था. बेरिश कैंडल वेंट बैक अप, रिजेक्शन फ्रॉम सीपीआर एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन. बैंक निफ्टी भी बहुत ज्यादा इस जोन में तो कंसोलिडेटेड ही था. लास्ट में कहीं ना कहीं एक फॉल देखने को मिला, वो भी कुछ माइनर सा फॉल था. सो अगेन नॉट अ वेरी फेवरेबल कंडीशंस फॉर द बायर्स टू ट्रेड इन द बैंक निफ्टी इंडेक्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर. इसीलिए हम ज्यादा डिस्कशन इसमें करेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड या लाइट बेयरिशनेस के साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है क्लोज हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में. अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स की बात करें बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए, सो व्हाट आई कैन सेंस इज द रेजिस्टेंस विज बिग रेजिस्टेंस इज अवेलेबल राइट एट दिस लेवल. दिस इज 32,937 लेवल. यहां बड़ा रेजिस्टेंस अवेलेबल है, छोटा रेजिस्टेंस नहीं है. क्या है? बड़ा रेजिस्टेंस अवेलेबल है. और अगर हम सपोर्ट की बात करें, so the support for the bank nifty index, let me quickly show you the support levels for the bank nifty index. The support will come around at 32,290 levels. I would say 32,290 लेवल का जो ये जोन है, यहां कहीं आपको पहला सपोर्ट इंडेक्स को देखने को मिल सकता है. जस्ट इन केस अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है मेरे दोस्त, तो आपको 31,987 तक का जो है वो ट्रैवल करता हुआ बैंक निफ्टी आपको दिख सकता है. बिकॉज बैंक निफ्टी इंडेक्स इज इन जनरल लुकिंग वीक in comparison to the Nifty 50 index. Let me do one thing for you. Let me quickly show you the option chain for the Bank Nifty index. Let me open up the option chain for the Bank Nifty index. ओके यस. सो बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि करेंटली जो लेवल है दैट इज 32,448, 32,500 का जो जोन है, यहां पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ही ज्यादा है, पुट साइड कम है. सो दिस लेवल इज अ वेरी इंडिसाइसिव लेवल. यहां से इंडेक्स को नीचे जाना कंपैरेटिवली आसान है बजाय ऊपर जाने के. सो वी कैन, इफ दिस लेवल ब्रेक्स डाउन, जो हमने लेवल अभी डिस्कस किया जस्ट 32,300, 32,200 का जो रेंज है, वो अगर ब्रेक डाउन होता है तो आपको 32,000 भी इजीली मिल सकता है. 31,900 तक भी जा सकता है इंडेक्स, एंड देन फ्रॉम देयर ऑन इट कैन maybe retrace back. What we'll do is we'll look at the Bank Nifty index at a larger from a larger perspective. ठीक है, अगर हम देखें तो मैं आपको एक काम करता हूं, let me just zoom it up. Yes, okay, हम थोड़ा सा naked charts के अंदर देखते हैं. हमारे सिर्फ यहाँ पे pivot points लगे हुए हैं और उसके अलावा we are looking at the naked chart for the Bank Nifty index. हम देखते हैं इसको तकरीबन यहां से हम देख रहे हैं
तकरीबन 15 मार्च के लेवल के आसपास से हम बैंक निफ्टी इंडेक्स को इस जगह पे देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आपको यहां पे जो है वो दिख रही होगी। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन अप। ओके, यस, ओके फाइन। सो अगर आप इस लेवल से देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन यहां पे जो है वो दिख रही होगी। 1 सेकेंड, लेट मी, यस फाइनली, ओके। सो यहां से आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगी। ये ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है, यहां पे एक स्टैटिक सपोर्ट लगातार बैंक निफ्टी लेता जा रहा है, ये आपको दिख रहा है। नाउ द थिंग इज, अगर ये जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस का जो, ये सपोर्ट का जो लेवल है जो यहां आपको दिख रहा है, दैट इज 32,421 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक डाउन होता है सक्सेसफुली तो आपको फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 30,162 के लेवल के आसपास मिलेगा और स्टैटिक सपोर्ट उससे भी नीचे मिलेगा। ठीक है, तो ये 32,162 का लेवल कहां से निकल के आया है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। व्हाट आई विल डू इज आई क्विकली जूम आउट एंड शो यू कि ये 32,162 का लेवल कहां से निकल के आया है। अब आपको शायद थोड़ी क्लैरिटी के साथ दिख रहा होगा कि फर्स्ट फरवरी का जो दैट व्हाट वी कॉल एज द निर्मला सीतारमन कैंडल, द बजट डे, वहां से अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आई थी उस दिन मार्केट के अंदर और वहीं पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है। तो मैं कहूंगा कि अगर ये 32,421 का रेंज ब्रेक डाउन होता है तो आपको जो है 30,162 तक जाता हुआ मार्केट दिख सकता है इन द नेक्स्ट वीक। हम इसको वापस हमारे चार्ट्स पे जाके देखते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर 421 का जो लेवल हमने मार्क कर रखा है, ठीक है, सो 32,421 अप्रॉक्सिमेटली दिस लेवल, यहां पे अगर आप देखेंगे तो 32,421 की जो ये रेंज है, 421 से 446 की जो ये रेंज है, अगर ये ब्रेक डाउन होती है तो यहां से फिर आपको इंडेक्स बहुत इजीली पहले 32,290 और फिर सीधे 31,987 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो ये लेवल्स हमने एक लार्जर स्केल पे डिस्कस कर लिए हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लें, सो व्हाट वी विल डू इज वी लुक एट द रेजिस्टेंस लेवल्स हियर इन द नेकेड चार्ट विथ एट लार्जर लेवल। 1 सेकेंड, लेट मी जूम इट इन। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर लें तो एक माइनर रेजिस्टेंस व्हाट आई विल से इज इट्स अवेलेबल राइट इन दिस जोन। ठीक है, सो 33,960 major resistance available in this zone 33,963 is your major resistance, but ये तो खैर फ्यूचर की बात हो गई। इससे भी पहले आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस आ जाएगा, लेट मी शो यू दिस स्विंग हाई। ओके, यस, 32,932। सो दिस इज योर इनिशियल रेजिस्टेंस जो आपको अभी फेस करना पड़ेगा, 32,932। ये आपका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट मैं आपको नीचे की ओर दिखा चुका हूं ऑलरेडी। सपोर्ट इज अवेलेबल इन द लोअर रेंज। 1 सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस। ओके, यस, सो सपोर्ट इज अवेलेबल इन द लोअर रेंज फ्रॉम हेयर। ये देखिए, ये आपको क्लियरली अब दिख रहा है सब कुछ। सो आपका रेजिस्टेंस क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, 32,932 इज योर रेजिस्टेंस 1। एंड सपोर्ट की बात करें, अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो इंडेक्स धीमे धीमे जाता हुआ आपको 30,162 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। इनकेस 32,000 ब्रेकडाउन हो जाता है तो मेजर सपोर्ट, मेजर एक बड़े पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं मैं, यहां पे छोटे पर्सपेक्टिव से हमने अपने स्मॉलर चार्ट्स पे ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक है, बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए हमने इस छोटे पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी बात कर ली है कि आपका सपोर्ट यहीं पे आपको मिल जाएगा, 31,987 पे आपको एक स्मॉल सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे हमने बात कर ली है। सो दिस इज व्हाट वी कैन सी फॉर द निफ्टी 50 इंडेक्स एज बैंक निफ्टी इंडेक्स एज ऑफ नाउ। निफ्टी को भी एक हम मेजर चार्ट पे देख लेते हैं, एक लार्जर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर हम निफ्टी को देखने जाते हैं तो हमको क्या दिख रहा है ये भी बात कर ही लेते हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द होल वीक। तो हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव से आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। 1 सेकेंड, लेट मी जूम इन द चार्ट्स फॉर यू। अगर अब आप यहां पे देखेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था जो ब्रेक हो चुकी है। अब आपको बेटर क्लैरिटी के साथ यहां पे दिख रहा होगा। क्या आपको ये दिख रहा है कि 5 अप्रैल के बाद एक ट्रेंड लाइन यहां पे बनी हुई आपको दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक हो चुकी है कंसोलिडेशन के साथ। अब चांसेस क्या है कि ये जो सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट आपका है 14,488। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्जर रेंज, यानी पूरे वीक में क्या हो सकता है कि रेंज किस समय में बात कर रहा हूं, डे में क्या हो सकता है वो मैं आपके साथ दूसरे चार्ट्स पे ऑलरेडी देख चुका हूं, द 5 मिनट चार्ट्स। लार्जर रेंज में बात करें तो अगर निफ्टी ये सपोर्ट सस्टेन, ये सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो अब जाके उसको सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट मिलेगा, दैट विल कम डाउन एट 14,488
488 लेवल्स। तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। Therefore I am saying again and again that the major trading range for the Nifty is between 15,000 level and the 14,488 और 14,500 लेवल। ये हमने एक मेजर पर्सपेक्टिव से निफ्टी के लिए भी बात करी है और बैंक निफ्टी के लिए भी बात कर ली है। तो अभी हमारे पास क्या क्या क्लैरिटी हो गई है, ग्लोबल इन द लोकल न्यूज, वी नो व्हाट इज अफेक्टिंग द मार्केट्स, आगे क्या हो सकता है ये भी हमने देख लिया है, कौन से स्टॉक्स अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहे हैं ये भी हमने देख लिया है, और ये भी देख लिया है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, और लार्जर टाइम फ्रेम में वीकली एक्सपायरी होते होते निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, द कमेंट सेक्शन इज डाउन बिलो, प्लीज राइट देम। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन। दिस इज योर फ्रेंड उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोडिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो।